Hello everyone, welcome to my channel that is IELTS Reading with KK. So today we will discuss one important type which is you have to match the questions with the list of people. That is, you have to match the given information in the question with the list of people given in the blog. सो इन टाइप क्वेश्चंस को करने के लिए एक बिल्कुल ही सिंपल सी स्ट्रेटेजी है. इसमें हमको क्या करना होता है कि वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल रीड आउट द क्वेश्चंस. हमें क्वेश्चंस रीड आउट करके उनके कीवर्ड्स मार्क कर लेने हैं. फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप इज़ टू स्कैन द लिस्ट ऑफ पीपल. उससे क्या है, ईजी हो जाता है लोकेशन को फाइंड आउट करना. एंड आफ्टर दैट, आफ्टर फाइंडिंग the list of people in the passage, we have to just match the keywords with the people given there. ओके जो मतलब पीपल की स्टेटमेंट होगी, हमें उसको सिंपल अपने क्वेश्चंस के कीवर्ड की स्टेटमेंट्स के साथ मैच करना है. ओनली कीवर्ड्स, कोई ज़रूरत नहीं है एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मैच करने की. हमें सिंपल क्या करना है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट, क्वेश्चन के कीवर्ड्स को सिंपल पीपल के कीवर्ड्स के साथ मैच करना है. so easily we can get the answer, right? so let's do it together. so सबसे पहले हमें क्वेश्चंस रीड आउट करने हैं. सो क्वेश्चंस क्या है, सो 19 क्वेश्चन इज पीपल must accept that they do not know much when first trying something new. That is our main keyword, first trying something new. okay, next is it is important for people to actively notice. That is, they have to notice when good thing happen. so this is the main keyword. so next is courage. don't forget to underline the keywords. courage can be learned once its origin in a sense of responsibility are understood. okay, so next question is it is possible. given here is possibility to overcome shyness when faced with the need to speak in public. so speak in public is our keyword. so now our next step is to scan these list of people in the passage. okay, so let's start scanning. so let's move to the paragraph A. so our paragraph A is, okay, let's start scanning the is there any writer name given in the paragraph A? No, we do not get any writer name or any people name in the paragraph A. so let's move to next paragraph. No. yes, in the B paragraph we got one people name, that is Christopher Peterson. okay, सो अब हम इस राइटर की स्टेटमेंट साथ ही पढ़ लेंगे एंड हम मैच करने की कोशिश करेंगे. सो वो क्या कह रहा है, द एविडेंस इज गुड दैट मोस्ट पर्सनैलिटी ट्रेड्स कैन बी ऑल्टर्ड. सो ही इज़ टॉकिंग अबाउट पर्सनैलिटी ट्रेड्स. Professor of psychology at the University of Michigan, who cites himself as an example, inherently inverted. He realized early on that as an academic. So he learned to be more outgoing. That is, more outgoing to entertain his classes. Now, my उसकी स्टेटमेंट ऐसे दे रखी है he says करके. तो वो क्या कह रहा है, now my extroverted behavior is spontaneous. कि उसका जो एक्सट्रोवर्ट बिहेवियर है वो क्या है, स्पॉन्टेनियस है, मतलब कॉन्टिन्यूस है. सो एक्सट्रोवर्ट बिहेवियर, लेट्स मैच इट विद द क्वेश्चन, इज देयर एनी एक्सट्रोवर्ट बिहेवियर सिनोनिम गिवन है क्या कोई एक्सट्रोवर्ट बिहेवियर का हमारे क्वेश्चंस में? यस, लेट्स चेक इट. 19 में नो, 20 में गुड थिंग्स हैपन नो, करेज नो. यस, इट इज़ गिवन इन द 22. स्पीक इन पब्लिक इज एक्सट्रोवर्ट बिहेवियर. सो हमारा आंसर 22 का क्या आएगा, ए. सो हमारा आंसर ऑफ 22 इज ए. ओके,
सो हमने एक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है. नाउ मूव टू द नेक्स्ट. ओके, सो सी में हमारा एक और राइटर गिवन है, दैट इज डेविड. सी में जो हमारा राइटर गिवन है डेविड, यस, उसकी स्टेटमेंट पढ़ेंगे. हैड टू मेक अ सिमिलर ट्रांजिशन. ही वॉज प्रिपेयरिंग फॉर द यूनिवर्सिटी. ही हैड एन एक्सीडेंट टू पुट एन एंड हिज स्पोर्ट करियर on campus. He quickly found that beyond ordinary counseling, the university had no services, physical rehabilitation, and suffering from depression like him. उसने क्या किया था? He therefore launched a sport group to help others in similar situation. He took action despite his own pain. Typical response of an optimist. Okay, so क्या कोई है questions में keyword? Let's match it. People, no. Trying something, actively notice, good thing happens. Courage, no. So हमारा ये वाला राइटर किसी में भी नहीं है. Okay, so let's move to the next. Yes, we get another writer people name in D paragraph, that is this. So let's read it carefully. Professor of psychology at the University of believes that the key of increasing optimism is through cultivating optimism behavior rather than positive thinking. She recommends you to train yourself. अपने आप को ट्रेन करो. To pay attention to good fortune by writing down 3 positive things. She recommends you to train yourself to pay attention to good fortune. So good fortune is the main keyword. हमें एक good fortune का था, है ना, जो हम लोगों का क्वेश्चंस में भी था. दैट इज व्हाट? यस, गुड थिंग्स हैपन. गुड थिंग्स हैपन इज व्हाट? गुड फॉर्चून. यू हैव टू पे अटेंशन, राइट? पे अटेंशन इज एक्टिवली नोटिस. सो हमारे कीवर्ड्स मैच हो रहे हैं विद द राइटर सुजेन सिगस्टर्न. सो सुजेन सिगस्टर्न इधर कौन सा राइटर है? सी. सो तो हमारा 20 का आंसर क्या रहेगा? सी. Okay, like this we have to sort out our questions. Now move to the next. हमारे 2 questions हो गए हैं. अब next questions पे हम move होते हैं. Okay, so let's move to the D paragraph हमने कर लिया. Let's move to the E paragraph. E paragraph जब हम read करते हैं हमें एक writer मिलता है, people name that is इसका statement पढ़ेंगे. You can recognize a person who is passionate about this, strongly involved the sport of this, deep into the water without tanks and breathing equipment. 1998, she can hold her breath. Physical stamina required for this sport is intense, but the psychological demand. Streeter learned. उसने क्या learn किया था? To entangle psychological demand, or even to untangle her fears. Okay, her body and mind could do. I thought it was. So वो basically fear की बात कर रही है. Okay, so let's match it with the question. So 19 में क्या है? When trying something new. ये तो कोई न्यू ट्राई करने की बात नहीं हो रही है, वहाँ पे बेसिकली फियर की बात हो रही है. सो फियर इज़ रिलेटेड टू द करेज, लेकिन उसने सिर्फ किसकी बात की है? फियर्स की. क्योंकि उसने फियर को लर्न करना सीखा था, राइट? उसने ये चीज़ नहीं सीख, करेज की वहाँ पर कोई भी बात नहीं हुई है. दैट इज़ वाई हम ये वाला अभी मार्क नहीं करेंगे. ओके, हम आगे एक बार मूव कर लेंगे. ओके, सो नाउ नेक्स्ट मूव टू द एफ पैराग्राफ. एफ पैराग्राफ में हमारा राइटर स्कैन होता है पॉल सिल्विया. वो क्या कह रहा है? द सीक्रेट अबाउट कंज्यूमिंग पैशन अकॉर्डिंग टू दिस इज दैट दे रिक्वायर डिसिप्लिन. They require discipline, hard work and ability. Has the advice. यहाँ पे एक और राइटर है टोड कैशडन. टोड कैशडन क्या कह रहा है? Has this advice for those people who are taking up a new passion as a newcomer. Yes, that is our main keyword. न्यूकमर. न्यूकमर्स क्या होते हैं? जो कोई नई चीज़ पहली बार ट्राई कर रहे होते हैं. पीछे हमारा एक कीवर्ड था एज ए न्यूकमर, है ना. न्यू कमर के लिए क्या मतलब मीन्स
यू हैव टू टॉलरेट एंड लाफ एट योर ओन इग्नोरेंस, मतलब आपको टॉलरेट करना पड़ता है और हंसना पड़ता है अपनी ही इग्नोरेंस पे। क्यों? क्योंकि आपको उसके बारे में ज़्यादा नहीं पता होता। सो दैट इज़ यू मस्ट बी विलिंग टू एक्सेप्ट द नेगेटिव फीलिंग्स। आपको मस्ट दिया हुआ है यहाँ पर, यू मस्ट बी विलिंग, मतलब आपको एक्सेप्ट करनी चाहिए नेगेटिव फीलिंग्स जो आपके रास्ते में आएंगी, है ना। सो लेट्स मैच इट विद द क्वेश्चन। सो 19 में हमारा ये गिवन है पीपल मस्ट, उधर भी था इधर भी था। ध्यान रखिएगा अगर मस्ट हमारा क्वेश्चन में है तो मेक श्योर करना कि पैसेज के अंदर भी आपका मस्ट हो, क्योंकि मस्ट क्या होता है? मस्ट होता है दैट इज 100%, ठीक है। एंड शुड क्या होता है? शुड कैसे आता है? एडवाइस करके, ठीक है। तो मस्ट क्या होता है? 100% में आता है। तो अगर क्वेश्चन में मस्ट है तो मेक श्योर करना आपका पैराग्राफ में भी मस्ट होगा, अदरवाइज वो कॉन्ट्राडिक्शन में जाएगा। सो फर्स्ट ट्राइंग समथिंग न्यू इज व्हाट? दैट इज फर्स्ट ट्राइंग इज समथिंग न्यू, न्यू कमर, राइट। एंड नेगेटिव फीलिंग्स दैट कम योर वे, विलिंग टू एक्सेप्ट इज व्हाट? ये देखो, पीपल मस्ट एक्सेप्ट दैट दे डू नॉट नो मच। उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि उन्हें ज़्यादा नहीं पता, मतलब नेगेटिव फीलिंग को एक्सेप्ट करना पड़ेगा व्हेन ट्राइंग समथिंग न्यू, मतलब एज अ न्यू कमर। तो ये हमारा कौन सा राइटर था? दैट इज टोड कैशडन। टोड कैशडन था, तो इधर टोड कैशडन का कौन सा है? दैट इज टोड कैशडन ई। सो हमारा 19 का आंसर क्या आ जाएगा? पैराग्राफ, राइटर नेम सॉरी, ई। ओके, सो हमारा एक पेंडिंग रह गया है 21। लेट्स डू इट, इसको भी फटाफट करके ख़त्म करते हैं। सो 21 आगे मूव होते हैं। 21 में हमारा राइटर, जब हम आगे मूव फर्दर पढ़ते हैं, यहाँ पे एक हमारा राइटर स्कैन होता है। उसकी स्टेटमेंट अगर हम पढ़ते हैं, इट मीन्स स्पीकिंग आउट समथिंग अगेंस्ट समथिंग ही थॉट वॉज एथिकली रॉन्ग, कि वो गलत है। उसने केयरफुली रिकॉर्ड किए थे ईच इंस्टेंट ऑफ बुलिंग को, कोई भी स्टेटमेंट फर्दर नहीं गिवन। नेक्स्ट हमारा एक और राइटर है एच में, दैट इज़ किंथिया पूरी। ये क्या कह रहा है? पेडिलो स्टोरी प्रूव्स दैट करेज इज़ नॉट मोटिवेटेड बाय फियरलेसनेस। करेज की बात हो रही है, करेज को मोटिवेट नहीं कर सकते फियरलेस से, बट बाय मोरल ऑब्लिगेशन से आप मोटिवेट कर सकते हो। ऑब्लिगेशन इज व्हाट? रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। तो ये हमारे मेन कीवर्ड्स हैं, करेज और रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो लेट्स मैच इट विद द क्वेश्चन। किसके साथ मैच कर रहे हैं? ये देखो 21 में हमारे करेज और रिस्पॉन्सिबिलिटी थे। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज व्हाट? ऑब्लिगेशन। तो ये हमारा राइटर कौन सा जाता है? दैट इज सिंथिया पूरी। सिंथिया पूरी हमारा राइटर जाता है। तो हमारा 21 का आंसर क्या आएगा? हमारा 21 का आंसर जी आएगा। सो लाइक दिस हमने सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। लाइक दिस यू हैव टू सॉर्ट आउट योर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। इससे क्या है, आप कंफर्टेबल हो जाओगे और आपको क्या है, सारी की सारी स्टेटमेंट मैच करने की ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट हैव टू पिक द कीवर्ड्स ऑफ द क्वेश्चन एंड जस्ट मैच विद द स्टेटमेंट ऑफ द पीपल, ठीक है। आपको सिंपल कीवर्ड पिक करके, या इधर उनके सिनोनिम्स गिवन होंगे, आपको सिंपल मैच कर देना, और इधर एग्जैक्ट वर्ड गिवन होगा तो आपको सिंपली मैच करना है। डोंट मैच द फुल स्टेटमेंट, डोंट ट्राई टू मैच द फुल स्टेटमेंट। उससे क्या है, समटाइम्स हम लोगों को समझ नहीं आती है, समटाइम्स पैराफ्रेजिंग काफ़ी गिवन होती है। सो ट्राई टू मैच ओनली द कीवर्ड्स, you will easily get the answer. So hope you will like my video. Don't forget to share my video and subscribe my channel. Thank you.